Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. Yesterday, PNB communicated its vacancies to trade unions, and in turn, candidates were able to know the number of vacancies under PO, SO, as well as clerical. Now, there is one letter in circulation in social media in which Workmen Union has expressed its displeasure on number of vacancies. Now, some of you have sent this letter copy to me for my opinion on such matters. What are the implications? Whether vacancies will rise, whether management will stick to its guns, whether there is any precedence when reconsiderations were done, and so on. First thing we have to keep in mind, manpower planning of an organization means that the management consults the unions and based on consensus, vacancies are finalized. Now in this case, management has decided some vacancies and communicated to union, and unions are not agreeable to that number. What does it imply? It implies that management may call the unions for renegotiation, because every organization to keep its employees happy and in a state of affairs where they work towards progress of the organization. So no management can unilaterally ignore the unions. So my view is, if they have written this letter to the management and they have used very tough language, it means the entire matter may be reconsidered. And if it is reconsidered, it will be on the upside only. That means the vacancies can rise. But as a candidate, you have to accept the available number. Don't be deterred by these communications. Give complete focus on your study. I have already given you a number that by the time final selection happens, the number will be 10,000 plus overall vacancies of IBPS clerk. Whether PNB adds it or some other banks add it, the total number will ultimately reach the level of 10,000. That is what my experience says. So you should work hard, and most likely IBPS will call 1 lakh people, 1 lakh candidate to appear for mains examination after announcement of result. So I think you should work hard. Don't waste your energies here and there. It is a great opportunity. Take advantage of it. If unions are in talk with the management, it is a good news for candidates, because they will fight it out and they may be able to get some posts added to the current tally that will help you to get the job. So overall, now chapter is reopened, and this reopening is on upside only. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. कल जो लेटर सर्कुलेशन में था, जिसमें मैनेजमेंट ने, पीएनबी मैनेजमेंट ने अपने यूनियंस को इंटीमेट किया था कितनी वैकेंसीज क्लरिकल में है, कितनी पीओ ऑफिसर कैडर में है और एसओ में है, इंटरनल प्रमोशन से कितनी होंगी और बाहर से कितने लिए जाएंगे. आज उस पे एक रिएक्शन का लेटर सोशल मीडिया पे सर्कुलेशन में है, जिसमें जो वर्कमैन यूनियन है उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है इन वैकेंसीज को लेके. अब इसको लेटर को काफी लोगों ने मुझे भेजा और उनका कहना था कि सर, इस लेटर को पढ़ के आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पर
हमें गाइड करिए कि क्या होगा इसका अल्टीमेट, कुछ वैकेंसी बढ़ जाएंगी या कुछ नहीं होगा। क्या पहले कभी ऐसा हुआ है कि रिकंसिडर हुई हो वैकेंसीज? इस पे अपनी आप ओपिनियन दीजिए। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जो वैकेंसीज फाइनल कर दी गई हैं उसका मैकेनिज्म क्या था। उसका मैकेनिज्म था मैन पावर प्लानिंग, जिसके अंदर मैनेजमेंट यूनियन लीडर्स को कंसल्ट करती है और उसके बाद एक वैकेंसीज पब्लिक करती है। अब अगर उसमें जो पार्टीज हैं जैसे कि यूनियन है, अगर उनके कुछ ग्रीवेंसेस हैं तो यूजुअली मैनेजमेंट को रीनेगोशिएशन के लिए बुलाना पड़ता है। मींस मैनेजमेंट उनको इग्नोर नहीं कर सकती है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक बहुत सब्सटेंशियल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को, और अगर वो एम्प्लॉइज मन से काम नहीं करेंगे तो कोई ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर सकती है। तो जब भी कोई एम्प्लॉइज की ग्रीवेंस होती है, मैनेजमेंट रिकंसिडरेशन के लिए जरूर बुलाती है। और कभी ऐसा नहीं होता कि मैनेजमेंट रिजिड हो जाती है कि हमने ये डिसीजन ले लिया अब बदल नहीं सकता, ऐसा भी नहीं होता है। डिसीजन होते हैं, रिकंसिडर होते हैं और बदले भी जाते हैं। अब इसके अंदर बदलाव कितना आएगा, कितनी वैकेंसीज ऐड हो जाएंगी या नहीं होंगी, ये इस स्टेज पे कोई नहीं कह सकता। ये तो डिपेंड करेगा कि जब यूनियन मैनेजमेंट के साथ बात करेगी तो वो कितनी वैकेंसीज बढ़वाने में कामयाब हो पाते हैं। वैकेंसीज हैं ये तो जग जाहिर है, ब्रांचेस में शॉर्टेज है ये सबको पता है, पोस्टें खाली पड़ी हैं ये भी सबको पता है। तो पोस्ट नहीं है ऐसी स्थिति नहीं है, वो पोस्ट भरी जाएगी कि ये नहीं जाएगी ये स्थिति है। तो अभी कितनी पोस्ट भरी जाएंगी ये मैनेजमेंट ने बताया यूनियन को। अब वो उससे ऊपर करते हैं नहीं करते ये समय बताएगा। मगर ये तो आप मान के चलिए कि जो पोस्ट है उससे अपवर्ड ही होंगी, कम तो नहीं होंगी। अगर कोई रीनेगोशिएशन होगी तो अपवर्ड ही होगी। मैंने आपको एक आंकड़ा दिया है कि मेरा मानना यह है कि आईबीपीएस क्लर्क में जो फाइनल सिलेक्शन होगी वो 10,000 प्लस कैंडिडेट्स की ही होगी, चाहे वो पीएनबी की वैकेंसी बढ़े चाहे दूसरे बैंकों से वैकेंसीज आए। जो हमारा अनुमान है जो हर साल होता है उस ट्रेंड के अनुसार ये वैकेंसीज बढ़ के 10,000 तक पहुंच जाएंगी जब तक फाइनल रिजल्ट आएगा। और उसी को ध्यान में रखते हुए ये बहुत बड़ी संभावना है कि आईबीपीएस मेन में एग्जाम में बैठाने के लिए 1 लाख तक कैंडिडेट्स को बुला सकता है। ये मेरा अपना अनुमान है कि वो कोशिश करेंगे अधिक से अधिक कैंडिडेट्स को बुलाने की, ताकि एक अच्छा उनको नंबर मिल जाए जिसमें से वो चुन सकें। क्योंकि आईबीपीएस के अंदर एक पर्टिकुलर चीज ये होती है कि जब तक इनका मेन का डेट आती है तब तक काफी लोगों की ज्वाइनिंग्स आ चुकी होती है। तो ऐसा देखने में आता है कि कई कैंडिडेट एग्जाम नहीं देने जाते आईबीपीएस क्लर्क मेन का, तो उसका क्वेश्चन रखना पड़ता है। तो मेरा मानना यह है कि ओवरऑल आपके लिए ये एक अच्छी खबर ही है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा इसमें से। गॉड ब्लेस यू ऑल।